Forfeiture of shares. We all know the meaning of the word forfeiture. Forfeiture means cancellation of shares. Cancellation of shares for non-payment of any of the installment. That means if any shareholder fails to pay any of the installment, shares are to be cancelled. And for cancelling the shares, share capital is to be debited. 2 share forfeiture, 2 calls in arrears. This journal entry we all know, right? Today we are doing forfeiture of shares when shares are issued at premium. What is the meaning of issue of shares at premium? That is when shares are issued for more than face value. When shares are issued for more than face value, that is, for example, a 100 rupee share issued at 110 or 120 or 130, that is 30 will be the premium amount. Okay, this premium we all know that it is to be debited along with the allotment, that is share allotment account debit, to share capital account, to securities premium reserve account. We all need to credit securities premium reserve at the time of making allotment entry due. At the time of making allotment due entry, we need to credit securities premium reserve. We credited the securities premium reserve. Okay. Now, if any shareholder pays the premium money and then their shares are forfeited. Point over here is when shares are issued at premium and premium amount is duly received. प्रीमियम हमें रिसीव हो चुका है, यानी कि अलॉटमेंट रिसीव अलॉटमेंट के साथ होता है प्रीमियम या फर्स्ट कॉल के साथ. अलॉट when nothing is given it is along with allotment, but when it is given we can take it with along with first call or second call as per given in the question. जब हमें प्रीमियम रिसीव हो चुका है देन देयर विल बी नो चेंज इन फोरफीचर एंट्री. फोरफीचर एंट्री में कोई भी चेंज नहीं होगा बेटा. Now I'll explain you with the help of an example. A Limited forfeited 3000 equity share of rupees 10 each, which were issued at a premium of 10%. That means these shares were issued at rupees 11 for non-payment of first call of 3 and final call of 1.5. So what they have not paid, 4.5 पे नहीं किया बेटा फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल. एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कर चुके हैं, अलॉटमेंट पे कर चुके हैं मतलब उसके साथ का प्रीमियम मनी भी पे कर चुके हैं. 2000 इक्विटी शेयर्स आर री इशूड. फोरफीट किए 3000, री इशू कर रहे हैं 2000 एट ₹9 पर शेयर. वी नीड टू पास द जर्नल एंट्रीज. क्वेश्चन फोरफीटेड से स्टार्ट हो रहा है तो सीधा फोरफीचर की जर्नल एंट्री आएगी. क्वेश्चन इश्यूड से स्टार्ट होगा और अगर क्वेश्चन में बोला होगा पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज तो वी नीड टू पास दी जर्नल एंट्रीज फॉर इशू एंड फोरफीचर. बेटा बेसिक प्रॉब्लम स्टूडेंट यूज टू आस्क मैम कब सारी एंट्रीज करनी है और कब सिर्फ फोरफीचर की देनी है. वी नीड टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली फॉर दैट, एंड इन केस ऑफ एनी फर्दर डाउट वी कैन डिस्कस इन आवर लाइव क्लासेस ऑल्सो. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000 इंटू 10. पूरा फाइनल कॉल तक कॉल कर चुके बेटा. 10 रुपीज से कैपिटल डेबिट हो रहा है बेटा, प्रीमियम को नहीं करना. यहाँ पे कभी भी प्रीमियम इंक्लूड नहीं होगा. 10 rupees, 3000 into 10, 30,000. What they have not paid, 4.5. Calls in arrears is 3000 into 4.5. 10 rupees में 4.5 पे नहीं किया, 5.5 पे कर दिया. तो 3000 into 5.5, 16,500 और calls in arrears 13,500. टोटल भी सेम आएगा, क्रॉस चेक भी कर सकते हो बेटा. 10 रुपीज़ में से 4.5 की पेमेंट नहीं करी थी तो कितने की पेमेंट कर दी थी, 5.50 की. Then these shares are reissued. 2000 shares are reissued. Bank account debit 2000 into 9. Share capital में 2000 into 10. Full amount 10 का शेयर 9 में reissue हो रहा है, 1 का लॉस 2000 into 1. Credit balance of share forfeiture 16,500 है. 16,500 में से 2000 माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रॉफिट 3000 का है, ये लॉस 2000 शेयर्स का है. 2000 के लॉस को 2000 के प्रॉफिट में से ही माइनस करेंगे. वी कैन कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व इन 2 वेज. फर्स्ट बहुत इजी है, 5.5 का प्रॉफिट है, 1 रुपी का लॉस है, एक शेयर पे
5.5 का प्रॉफिट है, 1 रुपी का लॉस है, तो हमारे पास 4.50 का प्रॉफिट बच गया. 2000 इंटू 4.50, 9000. राइट. सेकेंड, 3000 पे 16,500 का प्रॉफिट है, तो 1 शेयर पे 16,500 अपॉन 3000. बेटा बात वही है, राइट. डिवाइड करके वही आएगा 5.5. तो 2000 पे कितने का प्रॉफिट होगा? 16,500 अपॉन 3000 इंटू 2000. वी कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट 11,000. यानी कि 3000 पे प्रॉफिट 16,500 का था, तो 2000 पे प्रॉफिट 11,000 का. 11,000 का प्रॉफिट और 2,000 का लॉस, वी आर लेफ्ट विद 9,000 प्रॉफिट, and this is to be transferred to capital reserve. Credit balance of share forfeiture is to be transferred to capital reserve after reissue. कितना शेयर forfeiture का क्रेडिट बैलेंस बच गया बेटा? 1000 इंटू 5.5, 5500 क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर forfeiture बच गया, which we will use when these shares are reissued. राइट. जब ये रीइश्यू होंगे तो इस प्रॉफिट को यूज करेंगे. अभी 11,000 के प्रॉफिट को हमने यूज किया है. ये फर्स्ट केस व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड, देयर विल बी नो चेंज इन forfeiture एंट्री. बट व्हाट विल हैपन इफ एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे द allotment money? When premium money is not received, what is to be done? First of all, I'll explain. We credited securities premium reserve at the time of allotment due entry and we have not received in cash. हमने ड्यू तो कर दिया बेटा, क्रेडिट कर दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को, लेकिन हमें वो कैश में रिसीव नहीं हुआ. नॉट रिसीव्ड इन कैश. जो चीज़ हमने क्रेडिट कर दी और हमें कैश में रिसीव नहीं हुई, तो हम उसको कैंसिल करेंगे कि हमारा प्रॉफिट नहीं है. सो वी कैंसिल द क्रेडिट बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. क्रेडिट बैलेंस को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? डेबिटिंग इन द forfeiture एंट्री. तो forfeiture एंट्री में क्या चेंजेस आएंगे? सिंपल एंट्री शेयर कैपिटल टू शेयर forfeiture टू कॉल्स इन अरियर्स, साथ में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट हो जाएगा. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट कब होगा? जब वो हमें रिसीव नहीं हुआ है. जब रिसीव हो गया है तो एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होंगे. बट व्हेन देयर इज अ डिफॉल्ट इन रिसीविंग प्रीमियम, दैट प्रीमियम रिजर्व इज टू बी डेबिटेड. नाउ वी विल टेक वन एग्जांपल. राइट. बी लिमिटेड forfeited 5,000 10% preference share of ₹100 each, which were issued at a premium of 10%. 100 का 10% प्रीमियम 10 रुपी, ₹10 का प्रीमियम हो गया बेटा. नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम. 40 रुपीज प्रीमियम के साथ पे नहीं किया. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 20 नॉट येट मेड, अभी मांगी ही नहीं है, नॉट कॉल्ड अप. तो शेयर कैपिटल इज ऑलवेज टू बी डेबिटेड विथ कॉल्ड अप अमाउंट. 100 रुपीज में 20 रुपीज तो मांगे ही नहीं, 80 रुपीज कॉल किए हैं, तो 5,000 इंटू 80. बेटा कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मैम शेयर तो 110 का है, 20 नहीं मांगे तो 90 होना चाहिए. 90 में 80 फेस वैल्यू है, 10 प्रीमियम है. प्रीमियम को अलग डेबिट करेंगे. ये प्रीमियम हमको अलॉटमेंट के साथ था, रिसीव नहीं हुआ. रिसीव नहीं हुआ तो डेबिट करेंगे. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट. 40 पे नहीं किया, 90 में से 40 पे नहीं किया, 5,000 इंटू 40 कॉल्स इन अरियर्स, और forfeiture 5,000 इंटू 50. 90 में से 40 अनपेड, 50 इज पेड. शेयर forfeiture मीन्स व्हाट अमाउंट इज पेड बाय द शेयर होल्डर. कॉल्ड अप इज डिवाइडेड इंटू पेड अप एंड अनपेड अप. अनपेड अप इज कॉल्स इन अरियर्स, जो हमें पे कर चुके, दैट इज शेयर forfeiture. अगेन डेट, ledger folio, debit amount and credit amount. Please be careful regarding the format. Format is very important. And then narration also, being 5,000 shares forfeited for non 5,000 10% preference share. यहाँ इस 10% का कोई रोल नहीं है बेटा, ये शेयर का नाम है, तो इसको सिर्फ लिखेंगे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. बस हमने शेयर को कैंसिल कर दिया और इस 10% का कोई भी रोल नहीं है. दिस 10% इंडिकेट दैट वी नीड टू पे 10% डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स. हमें अभी सिर्फ forfeiture की एंट्री करनी है, डिविडेंड की एंट्रीज नहीं करनी है. राइट. दिस 10% इंडिकेट डिविडेंड, तो यहाँ 10% का कोई रोल नहीं है. दिस इज द नेम ऑफ द शेयर. When premium amount is not received, it is to be debited.
at the time of forfeiture. Now, two questions, two examples we have taken of only forfeiture entries. Now I am coming on to comprehensive question, which question says A Limited issued 50,000 shares of rupees 100 each at a premium of 20%. 100 का 20% प्रीमियम 20 रुपीज. अगर 500 का शेयर होता बेटा तो 500 का 20% 100 रुपीज प्रीमियम होता. प्रीमियम इज ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. पेबल एज टू रुपीज 25 ऑन एप्लीकेशन, 30 on allotment including premium, 20 allotment 10 premium, 30 on first call balance premium, 20 रुपीज का प्रीमियम है, 10 प्रीमियम, 20 कैपिटल का अमाउंट, एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल. ये टोटल हो गया बेटा 65. 100 में से 65 हो गया एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, तो फाइनल कॉल के लिए बच गया 35 रुपीज. एनी डाउट इन फाइनल कॉल अमाउंट? प्लीज आस्क मी अगेन इन लाइव क्लासेस, बट प्लीज बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस फाइनल कॉल अमाउंट. कैसे कैलकुलेट करते हैं बैलेंस को? एप्लीकेशन रिसीव फॉर 50,000 शेयर्स. एक क्वेश्चन कराया था कल अंडर सब्सक्रिप्शन का बेटा, आज ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं, आज फुल सब्सक्रिप्शन. 50,000 इशू किए थे, 50,000 की एप्लीकेशन आई. वन शेयर होल्डर एक्स होल्डिंग 4,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स आर फोरफीटेड. अलॉटमेंट पे नहीं किया मतलब प्रीमियम भी पे नहीं किया और उसके शेयर्स फोरफीट हो गए. हिज शेयर्स आर फोरफीटेड immediately. Add word immediately over here. After allotment, his shares are forfeited. Why? Another shareholder 3,000 share failed to pay final call and his shares are also forfeited. So how we will carry on with the question? First entry क्या होगी बेटा? 50,000 multiplied by 25. Bank account debit to share application 50,000 into 25. Right? Then this application money is to be transferred to capital. Look at the journal entries. First entry, bank to equity share application 50,000 into 25. Then share application account debit to share capital. Full amount is to be transferred to capital. Then we will make the allotment due entry. Premium है बेटा allotment में, ध्यान रखना. Share allotment account debit to share capital to securities premium reserve. कब प्रीमियम क्रेडिट होगा? जब क्वेश्चन में गिवन होगा. क्वेश्चन में गिवन था 10 रुपीज प्रीमियम है, तो 50,000 इंटू 30, प्रीमियम में 10 है, 50,000 इंटू 10, तो कैपिटल में हो गया 50,000 इंटू 20. राइट? एट द टाइम ऑफ रिसीविंग अलॉटमेंट, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 4,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी. 4,000 इंटू 30, 1,20,000. आउट ऑफ 15 lakh, 1,20,000 we have not received. Balancing figure we will receive 13,80,000. और वी कैन से 46,000 इंटू 30 ऑल्सो. हमें रिसीव करना था 15 लाख, 1,20,000 रिसीव नहीं हुआ, तो 13,80,000 बैंक में आ गया बेटा. देन दीज शेयर्स आर इमीडिएटली फोरफीटेड. 4,000 इंटू 100 नहीं होगा बेटा, क्योंकि हमने पूरा कॉल नहीं किया. हमने 25 एप्लीकेशन का था, 30 अलॉटमेंट का था, तो मैम 55 आना चाहिए, आपने तो 45 लिखा है. 55 में 10 प्रीमियम है, तो शेयर कैपिटल का अमाउंट 45. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 इंटू 45. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व रिसीव नहीं हुआ, 20 रुपीज नहीं, टोटल प्रीमियम 20 है, सिर्फ वही प्रीमियम डेबिट होगा जो रिसीव नहीं हुआ है. 10 रिसीव नहीं हुआ. 10 तो अभी हमने कॉल ही नहीं किया बेटा, फर्स्ट कॉल के साथ था वो, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 40,000 इंटू 10. 30 कॉल्स इन अरियर्स है, 55 में 30 कॉल्स इन अरियर्स, 4,000 इंटू 30. Share forfeiture 4,000 into 25. Got the point? Then after this, when first call is made due, बेटा हमने लास्ट पॉइंट में भी ये चीज़ डिस्कस करी थी कि जब हमने 50,000 में से 4,000 शेयर्स फोरफीट कर दिए, 50,000 में से 4,000 शेयर्स फोरफीट कर दिए, तो मैं फर्स्ट कॉल किससे मांगूंगी? 46,000 से मांगूंगी ना. 4,000 के तो शेयर्स मैंने वापस ले लिए, तो मैं उनसे फर्स्ट कॉल नहीं कर सकती. तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 46,000 इंटू 30, टू शेयर कैपिटल 46,000 इंटू 20, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 46,000 इंटू 10. 10 प्रीमियम का अमाउंट, 20 कैपिटल का अमाउंट. फर्स्ट कॉल पूरी रिसीव हो गई, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कॉल्स इन अरियर्स की.
सेकेंड फाइनल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी ड्यू करेंगे 46,000 इंटू 35। 35 पहले एक्सप्लेन किया था, देखना कैसे एक्सप्लेन किया है। कॉल्स इन अरियर्स 3,000 इंटू 35 रिसीव नहीं हुआ, बाकी अमाउंट रिसीव हो गया बैंक में। 3,000 शेयर्स जब फोरफीट करेंगे तो प्रीमियम डेबिट नहीं करेंगे। प्रीमियम कब डेबिट होगा? जब वो रिसीव नहीं हुआ है। 3,000 इंटू 100 यहाँ फुल अमाउंट आएगा, फाइनल कॉल तक कॉल कर चुके। कॉल्स इन अरियर्स 3,000 इंटू 35, शेयर फोरफीचर 3,000 इंटू 65। फोरफीट किए थे 7,000 शेयर्स, री इशू किए 6,000 शेयर्स। 6,000 शेयर्स एट ₹90 पर शेयर, 10 रुपीज़ का लॉस है, शेयर फोरफीचर डेबिट। डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर इज टू बी डेबिटेड टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। यहाँ डिस्काउंट डेबिट नहीं होगा, लॉस डेबिट नहीं होगा। प्रॉफिट को शेयर फोरफीचर में डाला था तो लॉस को भी शेयर फोरफीचर में डेबिट करेंगे। अब कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा? लास्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था, फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ। 4,000 पे हमारे पास 1 लाख का प्रॉफिट था बेटा, 25 रुपीज़ का प्रॉफिट था ना, और 3,000 पे 1,95,000 का प्रॉफिट था। देखो इधर 3,000 शेयर्स फोरफीट किए हमने, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 1,95,000, 3,000 इंटू 65, राइट। We have profit of 1 lakh on 4,000 shares and 1,95,000 on 3,000 shares. हमने रीइशू किए 6,000 विच इंक्लूडेड ऑल ऑफ एक्स, मतलब एक्स के तो पूरे 4,000 रीइशू कर दिए, तो हमने वाई के कितने लेंगे? 2,000। टोटल 6,000 है, एक्स के 4,000 तो वाई के 2,000। 4,000 पे पूरा प्रॉफिट 1 लाख, 3,000 पे प्रॉफिट 1,95,000 का है, मतलब एक शेयर पे 65 का है, तो 2,000 इंटू 65 1,30,000। टोटल प्रॉफिट इज 2,30,000 माइनस लॉस डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर दैट इज 60,000। 2,35,000 माइनस 2,30,000 माइनस 60,000, 1,70,000 is capital reserve. It may come in 1 mark question. Calculate capital reserve after giving the full question, right? So you need to solve it very carefully. In case of any doubt, please ask me in the live classes. Thank you so much.